Now today we will be discussing about type conversions in expressions. Now type conversion are of two types. One is implicit type conversion and the other is explicit. तो हम दोनों केसेस पढ़ेंगे, टाइप कन्वर्जन के दोनों केसेस पढ़ेंगे. नाउ टाइप कन्वर्जन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मींस कन्वर्टिंग वन टाइप फ्रॉम अनदर. नाउ टाइप का मतलब डेटा टाइप से, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना इज टाइप कन्वर्जन. ठीक है. नाउ इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज implicit and the other is implicit हो जाता है, automatically हो जाता है. That is known as implicit type conversion. And explicit type conversion is forced type conversion. मतलब आप फोर्स डेटा टाइप में डेटा, so that is explicit type conversion. और implicit में फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप से टाइप कन्वर्जन हो जाता है. The language automatically does that. मतलब जब लैंग्वेज अपने आप से टाइप करता है, it is known as implicit type conversion and this explicit type conversion. Now C automatically converts any in can be evaluated. Tick conversion is an C लैंग्वेज अपने आप से उसको जो ठीक लगता है एक टाइप से दूसरे टाइप में डेटा को कन्वर्ट करने की उसे जरूरत महसूस होती है, then it automatically does it. ठीक है. During evaluation, if the operation is current proceeds. So and when there is an operation in which suppose A and B float. ठीक है. अगर आप देखोगे तो इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है. नाउ इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली द लोअर डेटा, यहाँ पे लोअर डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर. डेटा टाइप मतलब जो कम मेमोरी यूज करता है दैट इज अ लोअर डेटा टाइप एंड व्हिच यूजेस मोर. इंटीजर को इंटीजर यूजेस 2 बाइट्स एंड फ्लोट यूजेस 4 बाइट्स एंड फ्लोट इज अ डेटा टाइप. तो जब भी कभी कोई एक्सपेजर है और एक ऑपरेंड फ्लोट हायर टाइप का है, then C auto into higher data. ये जो automatically conversion हुआ conversion, we don't have to do anything from our side. The C के लिए खुद कुछ नहीं करना पड़ता है, automatically उसे जो ठीक लगता है वो convert कर देता है. ठीक है. We'll see the examples for implicit type conversions. अभी मैं आपको type conversion और clear होगा. Now whenever you do it है, that is explicit type conversion. It's a forced type conversion. Compiler एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं, टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करे, लेकिन we can force the version is known as explicit type conversion. ठीक है. तो इसमें we want to force, there are instances where we from automatic conversion and that now explicit conversion करने के लिए हमें इस a variable है integer type है. Now I want to forcefully convert float a colon अब to float a and b है. तो अब इसने क्या of integer type, but we forced a to convert into brackets and writing it before a. ये लिखने का तरीका होता है, जिस टाइप में आप कन्वर्ट करना है को आपको is the value that has to be converted और आपको क्या है that is जो टाइप वेरिएबल था, it will be then that float value will be assigned to a जो आपकी 5 थी, तो होगा कि वो फ्लोट में कन्वर्ट करके. So suppose this is ये फ्लोट में कन्वर्ट फिक्स zeros will be float value में decimal के बाद 5 value will get converted into float so 0 and this value will now be assigned to, बाद में print करके देखते हैं, answer we will get is 5.0 answer we will get. तो हमने क्या originally उसमें value थी integer value 5, उसको b में assign किया, so 6 places after decimal as 0. So this type conversion, इसको हमने ये लिखकर explicit type conversion. So we have just learned compiler अपने आप से जहां उसको जरूरत महसूस होती है, it does that on its own. That type of this type of conversion we don't have to do anything कर देगा. लेकिन explicit type conversion is a forced conversion converted. So you force a data type to get it type conversion. So these are the two types. Now let us take example. There is a variable say int. है हमारा int a is equal to 10, ठीक, b which is of float type. ठीक है. अब मैंने क्या कहा, b is equal to, I'm doing is b में a की टाइप अलग है, this is integer type and this is float type. नहीं कर रही हूँ,
नाउ ऑटोमेटिकली टाइप बिफोर स्टोरिंग इन बी, तो ए में ये वैल्यू सेम स्टोर होगी, ए की ए जीरोस अपने आप से ऐड हो जाएंगे। ये वैल्यूज एंड फ्लोट टाइप वेरिएबल में 6 प्लेसेस आफ्टर 10 थी, बट व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोट इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज टाइप कन्वर्जन अपने आप से हो रहा है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। आई जस्ट एन एग्जांपल ऑफ implicit conversion। नाउ सपोज मैंने लिया, अब मैंने वैल्यू डाली 345 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, विच इज ऑफ इंटीजर टाइप ए। नाउ व्हाट वैल्यू को बी में असाइन करें, इसमें इंटीजर टाइप, दिस इज फ्लोट, क्या होगा, ये A545 वैल्यू स्टोर्ड है, यहाँ पे डेसिमल के बाद से बी कैसा वेरिएबल है, बी इज एन कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है, तो सिर्फ 45 पार्ट विल बी ड्रॉप। व्हाई इट विल बी ड्रॉप, बिकॉज एक एडजस्ट, तो सिर्फ वैल्यू क्या आएगी, so a float type is this can anything from our side, the float type value, integer type value का conversion take place हो रहा है, whenever you do, हम क्या कर रहे हैं, the convert to, ये 2 बाइट्स अलॉट होती हैं, तो यहाँ पे डेटा टाइप में कन्वर्ट एज लोअर टू, ठीक है, ऑफ डेटा, इस टाइप के इंटीजर से डेटा कन्वर्ट हो रहा है फ्लोट, देयर इज नो लॉस ऑफ डेटा, बाद में भी 10 ऐड हो जाएंगे, however वो instant, you are not lose के conversion में there is no से higher data type में convert करते हो। now the example for this, एक छोटे घर से बड़े घर में move करते have to you can shift all your things from discard of any things, आप पूरा का पूरा सामान, बहुत जगह होगी वहां पे, क्योंकि से आप एक छोटे घर से if you shift to a 3 BHK flat, तो जो सामान टू नहीं आएगी, so no loss of data takes place, आपको कोई भी all your things to your new house, higher data type conversion ना। दूसरे केस में ये जो सेकेंड हायर डेटा टाइप से लोअर डेटा को 4 बाइट्स अलॉट होती है मेमोरी में, तो मतलब एक ऐसी उसको हम स्क्वीज करके वी आर ट्राइंग टू पुट होगा डेटा लॉस, दिस इज डेटा टाइप, डेटा लॉस में टेक प्लेस। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 5, लेकिन जब वो बी में टाइप वेरिएबल में ट्रांसफर हुई, तो सिर्फ वाला जो पार्ट है दिस हैज टू बी आया, क्योंकि से इसके लिए it cannot store the decimal part of a number dropped, या उसको हमें, so here the data loss is taking place 3.3, the only the integer part in case of higher to lower data type data loss हो रहा है, ठीक है। now इसके लिए अगर आप bigger house to a small 1 BHK flat, तो आपका क्या होगा, now you are shifting to a smaller place because you don't have space for that in the new house, because it is just अपने सामान को हटाना पड़ेगा, you have to do away for those items there, so that is data losses से lower में move करोगे, there are chances कि data का loss हो, ठीक, unlimited है, so you can always carry whole of the things to your सपोज इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो, वैल्यू 3.00, बी में क्या आ जाएगी, वैल्यू 3, और बी में वैल्यू जब ट्रांसफर हो डेटा लॉस इज टेकिंग प्लेस, 3 पॉइंट फर्क नहीं है, क्योंकि से वैल्यू 0 है, उनका कोई, if you are moving from a higher data type to a lower data type, data loss may take place, ऐसा in some cases the data might not be lost, ठीक। और दूसरा जो हमने पढ़ा दैट इज एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में वेरिएबल से ए बी फ्लोट जो कि है, ए में वैल्यू है आपकी 10 एंड सी इज इक्वल टू आप ए डिवाइडेड बाय बी, अरिथमेटिक वन वाज अरिथमेटिक, जो अरिथमेटिक मींस टू कैलकुलेट एक फ्लोटिंग पॉइंट, और तीसरा होता है मिक्स, सो इट इज जस्ट अ रेफरेंस टू दैट when both the operands and this, now when both the result will also be, जब दोनों ऑपरेंड्स या जिन वेरिएबल्स पे अरिथमेटिक को इंटीजर अरिथमेटिक बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में when both the variables in, then the result will also be a floating point and mode arithmetic, जिसमें एक है, मतलब कि दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इस केस में भी हायर ऑफ द टू दैट इज फ्लोट इंटीजर टाइप है, और बी भी हमारा इंटीजर टाइप है। द अरिथमेटिक दैट इज टेकिंग प्लेस हियर इज इंटीजर अरिथमेटिक जब होती है, तो आंसर भी कैलकुलेशन क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, एंड नॉट 333, मतलब ये नहीं आएगी, उसकी जगह वैल्यू, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये कौन सा कैलकुलेशन, इंटीजर आएगा, सो दिस पार्ट, एंड जब ये वैल्यू 3, तो ये 3 वैल्यू ऐसा टाइप का है फ्लोट टाइप,
टेबल में स्टोर होगी तो जीरोस साथ में प्रिंट होंगे, ठीक है। तो सी जीरोस विल बी प्रिंटेड। 10 को जब आप एक्चुअल में 3 से डिवाइड 3.33333, बट इट इज नॉट कमिंग दैट, इट इज जस्ट टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक, हम क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे जिससे कि अब अरिथमेटिक एक हो जाएगी एंड मिक्स मोड अरिथमेटिक में जो रिजल्ट के बीच में कैलकुलेशन होगा तो आंसर हमेशा, मैं क्या चेंजेस करूंगी, आई जस्ट मेक द, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ राइट ए इंटीजर टाइप है तो ए को मैंने 4 एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दिया, टाइप हो गया और डिनोमिनेटर इज ऑफ इंटीजर टाइप। तो ये कौन सी टाइप की अरिथमेटिक हो गई, अरिथमेटिक में द आंसर विल बी, हो जाएगा पहले ए, तो इट विल बिकम डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि सब ए डिवाइडेड टू दिस एंड देन इट साइड विल बी 3 पॉइंट एंड दिस वैल्यू विल बी देन असाइंड टू 3333। तो प्रिंट करते समय वी विल गेट आई हैव गॉट एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल, हमने क्या, किसी को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, फोर्स ऑन इट्स ओन, आई एम डूइंग दिस फोर्सफुली, सो मिक्स मोड अरिथमेटिक विल टेक प्लेस एंड द रिजल्ट, इसकी जगह भी लिख सकते थे सी फ्लोट बी में या बी को, दोनों में अ मिक्स मोड, आप तो आप ये यूज करोगे या आप ये, दोनों ही केस में क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या है, फ्लोट है और डिनोमिनेटर है 3, so when an integer is divided by the higher one and 333333, so this is an use होता है क्योंकि से जब भी कभी आपको इस टाइप कंप्लीट आंसर यू आर गेटिंग इंटीजर टाइप आंसर आ रहना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, तो तब आप द कैलकुलेशन एंड गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। सो दिस इज, ठीक है, सब हम पढ़ चुके। एज वी सी जस्ट हैज कीवर्ड्स या सी में सिर्फ 32 की ऑफ द लैंग्वेज, सो सी इज अ वेरी, साथ में सी एक पावर फिल्टरिंग सिस्टम हैज बीन रिटन इन सी लैंग्वेज, सो इट्स अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज आल्सो। 32 कीवर्ड्स आर देयर, 32 कमांड्स मेक अप द लैंग्वेज। हाउ सेट के साथ इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि वो एक उसमें, तो दैट इज ओनली पॉसिबल विद द फंक्शंस दैट आर अवेलेबल इन सी। सो सी इज वही है जो लैंग्वेज को बनाते हैं, से इनबिल्ट काफी सारे फंक्शंस हैं, अलग अलग कामों को सिर्फ उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है डायरेक्टली, मेक्स द लैंग्वेज अ पावरफुल लैंग्वेज, ठीक है, दैट आर अवेलेबल इन सी मेक्स सी अ सिंपल। ये सारे जो फंक्शंस यहाँ पे लिस्टेड आउट हैं, साइन, कोसाइन, टैन, आपको कभी अगर, या फिर आपको वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर कैलकुलेट करना है, ये सब करने के लिए पहले से इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, यू कैन जस्ट डायरेक्टली एंड आप उसका काम कर सकना है। तो आई कैन जस्ट राइट SQRT द एक्चुअल प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो कोई भी सिंपल से सिंपल प्रोग्राम या एप्लीकेशन बनाने में इट विल टेक अ लॉट, पहले से सी में बने हुए आते हैं, इनबिल्ट होते हैं और हमें सिर्फ उनको फंक्शंस। नाउ सिमिलरली पावर फंक्शन भी आपको x टू द पावर ऑफ y निकालना है, तो I, so suppose you want to calculate it like this, 2 to the power and this is the power, that will give you the answer 32. Category के functions हैं mathematical functions. Now already functions have been divided into a number of categories, input, output, then mathematical functions. तो they have been categorized into, आपने प्रोग्राम में यूज करना है, you can use it in your program, बस आपको उससे रिलेटेड जो मैथ फाइल को मैथ इंक्लूड the header eio.h, conio.h को इंक्लूड करते हो अपने मैथमेटिकल फंक्शंस इन योर प्रोग्राम, यू हैव टू ऐड दिस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा आपको अपने प्रोग्राम में, डिक्लेयर्ड है, सो दिस इज रिक्वायर्ड ओनली एंड देन यू कैन मेक इट एंड आप उन फंक्शंस को यूज आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी वैल्यू का, डायरेक्टली करना है या कुछ भी करना है, एक पर्टिकुलर एंगल का साइन, वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस अवेलेबल इन सी व्हिच यू कैन यूज। चैप्टर 3 दैट इज योर ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस एंड फंक्शंस इन सी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत, अभी तक सिर्फ हमने 2 फंक्शंस पढ़े हैं, नाउ उसके अलावा भी कई, फॉर मैनेजिंग इनपुट आउटपुट इन सी। सो आई विल एंड दिस क्लास हियर।